Hello everyone. So this is the session on the I can say okay, let's have a title of the work over rig, वर्क ओवर एक्टिविटी और उसके लिए जो रिग चाहिए होगा वो रिग पे। ठीक है, वर्क ओवर रिग। हम वर्क ओवर कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज़ द बेसिकली नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द get, but you can listen it's very small, half an hour maximum video. Okay, so this is the we will cover 9 chapter, not thoroughly but the major important points which required to know for the gate or for the knowledge point of view. 10 chapter corrosion I will skip. ओके, यू कैन रीड इफ़ यू वांट। ओके, कैथोडिक प्रोटेक्शन ये सब आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, यू आर नॉट अ डाउन स्ट्रीम इंजीनियर, सो जाने दो, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। 13 इसके बाद जो चैप्टर है 11 12, तो 11th इज़ द वर्क ओवर रिग। सो वी विल गो थ्रू दी व्हाट आर द इक्विपमेंट यूज फॉर द वर्क ओवर और कैसे कैसे किया जा सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या उसमें मेथड है, वो देख लेंगे थोड़ा बहुत। एंड द लास्ट चैप्टर इज़ द योर वर्क ओवर एक्टिविटी आई गेस। 13 chapter इज़ द वर्क ओवर प्लानिंग। ओके, सो वर्क ओवर प्लानिंग द 13 chapter। चलो पहले मैं बता दूँ चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 इज द 11 and the 12th chapter is the work over planning. Okay, chapter number 12, okay, not 13, chapter number 12 work over planning. You can read this chapter by your own because this is nothing but the revision of the till date. Okay, you will read, then you will analyze. If you do not read, then okay, no need to read. But if you read for your knowledge point of view, or you want, you will take you will go through that chapter, then you will realize what we have learned till that, and 1 or 2 point, okay, 1 or 2 line which we have not learned, we will cover in the, okay, we have learned in the reservoir, so no worry, each and every line you know. Okay, each and every line the given in the 12th chapter, which is the work over planning, you know. For example, if I will say if coning is happening, then what you will do, you will improve the what you will do, you can take the production by horizontal well, or you can, what you will do with the spacing, or what you will do the flow rate, that is the written in chapter 12, which we have already covered. Then if there are emulsion is there, then what you will do, which kind of surfactant you will use, you know already, so that is again revision for you. If up deep or down deep structure and you want to inject the gas, then which is suitable, this is given in the that chapter. So that is the completely revision for you, so you can read by your own. Okay, I am not going to detailed explain about that chapter 12. So today we will cover, let's start with the scale. Important, what is the scale and what we can do to prevent the scale deposition or to remove the scale. Okay, so first of all, scale is the one of the challenge which we have to overcome by applying the work over treatment to that scale, or to prevent that, the suitable techniques we can use to prevent to डिपोजिट दी स्केल. ओके, सो स्केल क्या होता है, तो आपके लिए स्केल नया शब्द है. ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो नया नहीं होना चाहिए, बट इफ़ यू आर अनदर मीडियम लाइक हिंदी मीडियम, गुजराती, कोई भी मीडियम से हो, मातृभाषा की मीडियम से हो मेरी तरह, then if you don't understand the scale, then simply you can see in your house, you can see that whenever you will make the tea, you will make the tea is the common for all of us. So I am giving you example of the tea or coffee. So if tea or coffee you will make, at the end you can see your बर्तन. ठीक है, आप अपना बर्तन देखो, see your vessel or see your whatever bowl you use to make that tea. So if you will see, you can realize the scale on that surface. Okay, so that is the scale. I can say precipitation of something. Okay, I can say precipitation of the
या फिर मैं बोलूँ अवक्षेपण ऑफ दी, क्या कहते हैं इसको ही, अवक्षेपण कहते हैं। ओके, सो दिस इज द स्केल एंड हाउ कैन इट डिपोजिट। सो मान के चलो कोई सब्सटेंट है, ठीक है, आपने एक सूसर में, आपने एक रकाबी में क्या लिया, सॉल्टी वाटर लिया, क्या लिया, सॉल्टी वाटर लिया, और आपने इसको अपनी छत पे रखा, तो वाटर क्या हो जाएगा, धूप है, मान चलो डे लाइट है, तो ये इवोपरेट हो जाएगा, ये इवोपरेट हो जाएगा, और सॉल्ट दैट इज द नथिंग बट दी NaCl क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे स्केल के फॉर्म में रह जाएगा। तो दिस इज द स्केल। ओके, आई कैन से दिस इज द स्केल, और आई कैन से प्रेसिपिटेशन ऑफ समथिंग। सो इस तरह की आपकी स्केल आ रही है, ठीक है। या फिर हमने जो देखा था अपना अब तक, जो भी हमने इस बुक से देखा, दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन डैमेज और आस्फाल्टिन और पैराफिनिक का डिपोजिशन और वो सब हो रहा था। डेट इज ऑल नीड वर्क ओवर एक्टिविटी। ओके, एंड हमने स्टिम्युलेशन टेक्निक देखी, ठीक है, दैट इज अगेन काउंट इन दी वर्क ओवर, बट दैट इज द स्टिम्युलेशन, हम उसमें केक को अच्छी बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दैट इज द मोर इम्पैक्ट ऑन द रिजर्वायर पॉइंट ऑफ व्यू। बट अब जो हम टेक्निक देख रहे हैं वर्क ओवर, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द आफ्टर रिजर्वायर पॉइंट ऑफ व्यू। दैट मीन्स यहाँ पे ये है अपना रिजर्वायर और ये है अपना ट्यूबिंग फ्लो। सो वर्क ओवर एक्टिविटी बेसिकली वेयर वी डू इन दिस होल जोन, ठीक है। सो दिस इज दी, अगर ट्यूबिंग में कहीं पे आपका आस्फाल्टिन है या फिर पैराफिनिक है या फिर स्केल हो रही है, तो आप उसको रिमूव करोगे ऑब्वियसली आइदर यूजिंग स्केपर, और वी हैव सीन द टेक्निक्स इन दिस। सो वो टेक्निक्स यूज करके यू कैन रिमूव इट। Moreover, you can do work over here. Whenever you want to do work over, you can do acidization here. You can do fracturing here. Okay, whatever you want to do. So this all वर्क ओवर टेक्निक, और आई कैन से वेल स्टिम्युलेशन को हम वर्क ओवर में काउंट करते हैं या नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते हैं। आई डोंट नो, वेल स्टिम्युलेशन एक अलग है, बट उससे फ़र्क क्या पड़ेगा भाई, हमें तो अल्टीमेटली क्या करना है, अपना प्रोडक्शन अच्छा खासा रखना है। सो वर्क ओवर एक अलग चीज़ होती है, वेल स्टिम्युलेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, उसमें हम केक को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। वर्क ओवर क्या होता है कि जो हमने काम किया, ठीक है, मान के चलो ये काम आपका इसमें स्केल डिपॉजिट नहीं होता तो आप अच्छे से प्रोडक्शन ले सकते थे, बट यहाँ पे मान के चलो स्केल आ गया या कुछ भी इश्यू हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क उस पर करना पड़ रहा है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा वर्क आपको उस पर करना पड़ रहा है, दैट इज द वर्क ओवर, उसे ही क्या कहेंगे, वर्क ओवर, ठीक है। वर्क को क्या करना है, ओवर का काम करना है, ठीक है, नहीं करना था फिर भी करना पड़ रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड स्केल, देन वी विल कम टू दिस वर्क ओवर रिग। ओके, दैट असेंबली यू कैन यूज फॉर एसिडाइजेशन, ठीक है, दैट रिग। ओके, एक रिग तो होगा ही, हमने ऑलरेडी जहाँ पे वेल ड्रिल किया होगा, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे वेल ड्रिल किया होगा, तो यहाँ पे कंप्लीशन भी किया होगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मान लो आपको ये वाले जोन में, ये वाले वेल में क्या करना है, वर्क ओवर करना है, क्या करना है, वर्क ओवर करना है। तो आइदर यू कैन डेवलप दी, इसके लिए वर्क ओवर के लिए फिर से आपको ड्रिलिंग वाले मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट हो गए, ऑब्वियसली ड्रिलिंग करते थे उस टाइम पे जो इक्विपमेंट थे वो रिक्वायरमेंट हो गए, या इसके लिए जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, ठीक है, जैसे कि अपना क्राउन ब्लॉक, ठीक है, फिर रोटेशन प्रोवाइड करना है, तो रोटेशन तो वो तो देखते हैं, चलो क्या क्या इक्विपमेंट हो गए, स्विवेल के लिए ये सब तो रिक्वायरमेंट होगा। तो आप यहाँ पे फिर से सारे इक्विपमेंट ड्रिलिंग वाले तो नहीं इंस्टॉल करोगे, तो आप क्या करोगे, आप इधर थोड़ा बहुत एक अलग से यहाँ पे रिग बना लो, ठीक है, जो वर्क ओवर करवा सके, ठीक है, परमानेंटली रिग बना लो अगर बार बार करना पड़ रहा है। और नई टेक्निक है आजकल, ठीक है, तो आपने ट्रक देखा होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वर्क ओवर का एक ट्रक रहता है, ठीक है, क्या करता है ये ट्रक में, क्या रहता है, वर्क ओवर की छोटी सी रिग रहती है, और ये ट्रक को क्या नाम देके रखा है, कोयल ट्यूबिंग यूनिट, ठीक है। इसमें ट्यूबिंग की क्या होती है, कोयल होती है। दैट मीन्स आपके वहाँ पे जैसे ही रस्सी को बांध के, पुली पे बांध के जैसे रस्सी होती है, वैसे ही इसमें क्या होती है, एक पुली होती है, और उसके ऊपर क्या बांधी हुई होती है, अपनी कोयल ट्यूबिंग, ठीक है। दैट मीन्स ट्यूबिंग स्टील की ट्यूबिंग होती है, बट उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो ऐसे कोयल पे क्या हो जाए, स्टील बेंड नहीं होता इजीली, बट ये ऐसे स्टील की बनी होती है जो वो उस पर कोयल पे बेंट हो जाए, ठीक है। और इसका एक भाग यहाँ पे होगा और ऐसे इसमें
रिग होगी, ठीक है। तो ये ट्रक को बोलते हैं कोयल ट्यूबिंग यूनिट, उससे कर सकते हो। ओके, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, वी विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो इसकी बात कर रहा हूँ। वर्क ओवर के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए होगे उसे डालने हैं, दैट इज नथिंग, यू नो ईच एलिमेंट। एक दो नए हो गए, बुक अलग है तो ठीक है। हमने एचआरपी और वेरियोटोइड पढ़ा है ड्रिलिंग में, तो एक दो इक्विपमेंट नए नाम दिए हो तो ठीक है। बट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल एंड देन वी विल मूव ऑन दैट। ओके, 10 मिनट खर्च हो गई, आई विल कंप्लीट विद इन 20 to 30 मिनट। ओके, जितना इंपॉर्टेंट है जितना आई विल टेल। ओके, बाकी जो सारी चीज़ें हैं रबीश चीज़ें दैट आई विल नॉट टेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन स्केल कौन कौन सी है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। सो मोस्ट कॉमन स्केल है अपना CaCO3, NaCl, ओके, और NeSO4, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेटल है, मान लो BaSO4, बट ये कॉमन नहीं है, ठीक है। ये कॉमन है, ठीक है, आपको दिखने को मिलेगी तो ये मिल सकती है, ये मिल सकती है, ये उतना कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों की हम बात कर लेते हैं। सो जो स्केल है, ठीक है, तो मान के चलो हर एक एलिमेंट होता है, ठीक है। मान लो आपने शुगर लिया है, तो आपको बोल दूँ शुगर होता है वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, चलो ये पता है आपको। सेकंड चीज़, मान लो ये CaCO3 है, ठीक है, तो हमने एसिडाइजेशन अभी अभी देखा है, दैट मीन्स CaCO3 किस में सॉल्यूबल होता है, एसिड में, ठीक है। किस में सॉल्यूबल होता है, एसिड में, तभी तो HCl से हम इसको रिमूव कर पा रहे थे ऑब्वियसली। तो एसिड, कौन कौन से एसिड की बात कर रहा हूँ, आइदर HCl ले सकते हो, फिर एसिटिक एसिड भी देखा था। ओके, तो एक तो एसिड के नाम लिखे हैं वो आप समझ जाओ, ठीक है। CaCO3 किस में सॉल्यूबल होता है, एसिड में। ओके, तो आपको पता है कि ये जब भी आता है तो आपको आइदर इसको किसी जिसमें सॉल्यूबल है उसमें सॉल्यूबल करा के आप रिमूव कर सकते हो, या फिर क्या करो आप इसको ऐसे ही, ठीक है। मान के चलो आस्फाल्टीन है, ठीक है, आस्फाल्टीन में क्या देखा था, आस्फाल्टीन है, तो आपको पता है ये किस में सॉल्यूबल होता है, टोल्यूइन, बेंजीन, जाइलिन, इसमें क्या होता है, ये सॉल्यूबल होता है। और वैसे ही पैराफिन होता है वो डिस्टिलेट कंपोनेंट, जैसे कि केरोसिन, डीजल ऑयल, ठीक है, गैसोलीन, डिस्टिलेट कंपोनेंट में सॉल्यूबल होता है। तो यू कैन यूज अप्रोप्रिएट कंपोनेंट टू रिमूव इट, ठीक है। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए किसमें सॉल्यूबल होता, तो उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो आपकी बुक में गिवन है। लेट मी डायरेक्टली गो थ्रू टू दी बुक। सो यहाँ पे देखो ये बहुत सारी स्केल के दिए हुए हैं, बट यू कैन रिमेंबर ऑल कार्बोनेट एंड ऑक्साइड कंपोनेंट। ओके, ऑल कार्बोनेट एंड ऑक्साइड कंपोनेंट, ठीक है, मोस्टली सॉल्यूबल इन दी एसिड। सो आप इसको रिमूव करने के लिए यू कैन यूज दी एसिड। ओके, ओके, यू कैन यूज दी एसिड, ठीक है। ये और कुछ याद मत रखो। और सल्फेट है, सारे सल्फेट है, ठीक है। SO4 को सल्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फेट ही होता है या सल्फाइड होता है, सल्फेट ही होता है। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे ट आता है, उसमें H2S में सल्फाइड आता है। तो ये जो सल्फेट है दैट आर दी सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल इन दी एसिड। ओके, इनसॉल्यूबल इन दी एसिड। सो आप इसको रिमूव करने के लिए एसिड नहीं यूज़ कर सकते, बट ये आर नॉट, दिस आर नॉट दी मोस्टली कॉमन, ठीक है। ये सारे मोस्टली कॉमन है, इसको आपको रिमूव करना आता है एंड यू कैन यूज़ दी एसिड। सो आप याद रखो एसिड सॉल्यूबल स्केल कौन कौन से है, कार्बोनेट प्लस ऑक्साइड कंपोनेंट है तो वो, ठीक है। और सल्फेट है वो क्या है, इनसॉल्यूबल है एसिड में, तो सल्फेट, सल्फाइट, ठीक है, सल्फेट या सल्फाइट जो भी है, ठीक है। SO4 वाले कंपोनेंट नॉट सॉल्यूबल, ओके, इन दी एसिड। और ये क्या है, नमक ही तो है भाई, ठीक है, तो वो तो किस में सॉल्यूबल है, दिस आर दी सॉल्यूबल इन दी वाटर, ठीक है। इसको हेलाइट भी कहते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है, और हमने देखा भी है आगे, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, इस पर शायद वो MCQ बना ले, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद है तो चलेगा, बट ये तो याद कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा चैप्टर में आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। हाउ टू रिमूव दिस स्केल, सो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ओके, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। यू कैन यूज़ दी एसिड और यू कैन use the water to remove NaCl, you can use the acid to remove this carbonate. So these are the basic common scale. अब थोड़ी बहुत इसकी बात कर लेते हैं। CaCO3, देखो NaCl तो बहुत ही सिंपल है, आपका NaCl कब डिपोजिटेड होगा, जब उसमें से लिक्विड क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये भी उतना कंपोनेंट क्रिटिकल नहीं है, बट लेट्स टॉक ऑन दी CaCO3, ओके।
सो मैं आपको बता दूं, CO start with the first common scale which is the CaCO3. So during CaCO3 what will happen? So your CaCO3 will convert into bicarbonate HCO3 minus, plus it can form the CO2 as well as the H2O. Okay, your this you know this. ओके सो ये क्या करेगा, ये होता है, क्या होता है, देखो CaCO3 के बारे में हमने चीज़ पढ़ी हुई है कि CaCO3 इज द इनसॉल्यूबल इन दी वाटर। ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। बट जो बाइकार्बोनेट है दैट आर दी सॉल्यूबल, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी इसके कंपैरिजन में हाई होती है इन दी वाटर। ओके क्या होती है, हाई होती है। सॉरी, यू नो व्हेन CO2 क्या हो रहा है, आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है, CO2 रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग CO2। क्या कर रहे हो आप, CO2 को प्रोड्यूस कर रहे हो। वेन एवर यू आर प्रोड्यूसिंग CO2 एट दैट टाइम यू आर रिमूविंग द ऑक्सीजन, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द pH। ओके, आप CO2 को रिमूव कर रहे हो, दैट मीन्स आप इंक्रीजिंग द pH। अब आपने ये रिमूव किया, दैट मीन्स आपने इसकी कंसंट्रेशन को क्या किया, ये कंसंट्रेशन को क्या किया, लेस किया, ठीक है, ये कंसंट्रेशन को क्या किया, लेस किया। तो उससे क्या होगा, योर ये वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी क्या होगा, डिजोल्व बाइकार्बोनेट था। ओके, डिजोल्व था ये वाला कार्बोनेट, वो क्या करेगा, CaCO3 को, ये लेस सॉल्युबल था, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप CO2 को रिमूव करते हो तो आपकी pH इंक्रीज होती है, और उससे क्या होता है, आपका पुरोगामी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको प्रतिगामी कहते हैं, इसको पुरोगामी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ओके, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कुछ कांस्टेंट जैसा, आप वो तो मुझे भी याद नहीं है, ऑब्वियसली यू कैन चेक योर 12th केमिस्ट्री। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिवर्स डायरेक्शन, रेट ऑफ द रिवर्स और रेट ऑफ द फॉरवर्ड। ओके, बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता था, तो रेट ऑफ द बैकवर्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ द फॉरवर्ड, ऐसा कुछ आपने पढ़ के रखा है। तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, आप याद रख लो, CO2 जब भी रिलीज होगा तो आपका ये कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और pH साथों साथ इंक्रीज, क्योंकि आप ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो, दैट मीन्स pH क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। ये एक लाइन याद रख लो। तो रिवर्स आप बोल सकते हो कि आप CO2 इसमें डाल रहे होगे, ठीक है, CO2 अगर आप डाल रहे होगे तो क्या होगा, pH डिक्रीज हो रहा होगा, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो pH डिक्रीज हो रहा होगा, एंड CaCO3 क्या हो रहा होगा, कन्वर्टेड टू डिजोल्व बाइकार्बोनेट। ओके, तो एट दैट टाइम स्केल इज लेस व्हेन यू आर एंटरिंग द CO2, स्केल इज हाई व्हेन यू आर रिमूविंग द CO2। ओके, तो ये एक लाइन है। इसके बाद ये पैरामीटर है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू रीड। सेकंड इज द NaCl। ओके, सेकंड वन इज द NaCl जो मोस्ट कॉमन है। ओके, सो हियर आर गिवन द पैरामीटर, बट ओनली CaCO3 का पता है। ओके, फिर NaCl का भी पता है आपको। सो जो हेलाइट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हेलाइट आर सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, आपको पता है हेलाइट वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ताकि ये क्या क्रिएट करते थे, इस तरह का सोल्ट डोम क्रिएट करते थे। आपको पता है ये विस्कस लिक्विड बना के वाटर में सॉल्यूबल होके आ जाते थे, बट उसके बाद इसमें इम्प्यूरिटीज आ जाती थी। 5% ऑफ द डोलोमाइट आता था, एक्सप्लोरेशन में अच्छे से बताया है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्ट डोम, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, वाटर इवोपरेट होता है या डोलोमाइट यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो इतना गिरा देता है कि फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और उस टाइम पे उसका ये इस तरह से जो हेलाइट का सोल्ट डोम रचाता था, सेम मैनर में क्या होगा, आपका हेलाइट क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, इधर ये वाला कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाए या वो कुछ। तो ये बेसिकली सेकंड स्केल था। ओके, so you know this scale is what this scale will do, this scale will basically precipitate and block your flow, ठीक है। so
दिस इज द सिंपली स्केल। ओके, पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऐड द एडिटिव सच एज द एसिड्स और यू कैन अप्लाई द सूटेबल टेक्निक्स। ओके, यू कैन अप्लाई द सूटेबल टेक्निक्स। सो ये था छोटा सा चैप्टर, ठीक है। उसमें से ये एक हमें CaCO3 और NaCl को अंडरस्टैंड कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। ओके, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आई विल टॉक इन दी this not because it is easy for me to explain you. Okay, so let's start with the work over. Okay, so जो वर्क ओवर एक्टिविटी का जो लिए रिग देखना है, ओके, उसमें क्या होता है आपको बता दूं। जैसे ट्रक वाली रिग देखी, ठीक है, वैसे ही पहले हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, यू कैन फॉलो द बुक विथ मी। ओके, सो देर आर डिफरेंट यूनिट। ओके, कितने यूनिट है देखो। फर्स्ट है वो है आपका कंसंट्रेशन ट्यूबिक वाला, ठीक है, कंसंट्रेटिक, ठीक है, स्पेलिंग गलत ही होगा ऑब्वियसली, मुझे इंग्लिश नहीं आता इसीलिए, ठीक है, कंसंट्रेटिक। ओके, कंसंट्रेटिक ट्यूबिंग, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करनी होगी, एक रीड वहाँ पे, ठीक है, कन्वेंशनल रिग या कुछ भी आपको कन्वेंशनल, ठीक है, जो नॉर्मली जो रिग होती है वैसी रिग वहाँ पे आपको डालनी होगी, ठीक है। सेकंड वन नॉन कन्वेंशनल टेक्निक, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल टेक्निक जिसमें आजकल यूज हो रहा है वाइडली, दैट इज़ द कॉइल ट्यूबिंग यूनिट, CTU वाली रिग जो ट्रक में माउंट करके ले जाते हैं वो। सेकंड वन इज़ दी योर स्मॉल डायामीटर स्नबिंग यूनिट, ठीक है, स्मॉल डायामीटर स्नबिंग यूनिट। एंड थर्ड वन इज द लार्ज डायामीटर, ठीक है, लार्ज डाया स्नबिंग यूनिट, ठीक है। सो ये कॉमन नाम है, ठीक है। गेट में तो आई थिंक ये पूछे जाएंगे, बट आई थिंक ये पूछे जा सकते हैं, बट नहीं पूछे जा सकते, डैट मीन्स। सो कंसंट्रेशन ट्यूबिंग नॉन कन्वेंशनल यूनिट, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस 11 चैप्टर। आपको अगर बता दूं, ठीक है, उसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। सो एक चीज़ देखो, आपको पता है, ठीक है, कि कॉस्ट आता है वो क्या होता है, रिग का रेंट आपको चुकाना होता है, ठीक है। सो रिग का रेंट को ध्यान में रखते हुए यू कैन यूज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर आपने CTU लगा के रखा है, ठीक है, तो आपको एडिशनल रिग नहीं लगानी, तो इसका रेंट बच जाएगा। CTU का उतना रेंट नहीं होता है, ठीक है। आप ONGC है, ठीक है, तो इधर किसी के पास से CTU बाय कर ले, ठीक है। एक ट्रक होता है जिसमें पूरी की पूरी रिग है और वो मोबाइल होता है, ठीक है, तो कहीं पे भी ले जा सके, ला सके, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ सकती है, ठीक है। सो यू कैन यूज़ एनी मेथड, ओके, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, आपको क्या ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो आपको इसमें भी BOP मिलेगी, इसमें भी BOP होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में BOP होगी। सो यू आर एबल टू शट डाउन दी वेल एट नाइट, ठीक है। नाइट पे अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आप उसको शट डाउन कर सके, या फिर कोई जहाँ पे ओवर प्रेशर है, ऐसी कुछ कंडीशन है और शट डाउन नहीं रह सकते तो प्रोडक्शन ले सके, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अ BOP इन एनी टेक्निक, ओके। BOP के बिना सेफ्टी फर्स्ट, बाकी सब बाद में, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो you know, okay, so first of all the book is itself explaining regarding to, okay, so for book itself explaining you regarding in the starting about the production rig, or you can say the rig which you have studying in the drilling, okay. So let's start this chapter from this book. इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है, बट इंटरव्यू में आप या फिर कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हो और वो पूछ रहे हैं कि आपने इंटर्नशिप में क्या देखा, और आपने इंटर्नशिप नहीं की है, फिर भी कुछ वो आपको पूछ रहा है इंटर्नशिप के जैसा, ठीक है, तो एट दैट टाइम यू कैन आंसर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू कैन सी द फर्स्ट लाइन विच आई हैव टोल्ड यू इज गिवन समवेयर हियर। सो दीज आर दी यूनिट, ठीक है, दीज आर दी यूनिट विच यू कैन यूज, ओके। सेकंड चीज,
When circulation to bottom is not required, certain jobs can be performed by use of electron line and wire line. ठीक है, ये तो सिंपल सा, जैसे आप लॉगिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें जो वायर लाइन यूज़ करते हो, सिमिलरली अगर कोई ड्रिल पाइप है, ये वाली पाइप है, ठीक है, मान लो इस तरह की आपकी रिग है और आपको यहाँ पे एक स्क्रैपर डालना है, तो आप एक वायर लाइन से स्क्रैपर डाल दो इसके अंदर, ठीक है, तो आपका काम हो रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे स्क्रैपर को रोटेट तो नहीं करना है उतना, ठीक है, रोटेट ही नहीं करना है, बस इसको वहाँ जहाँ पे स्केल है वहाँ पे अप डाउन रेसिप्रोकल टाइप का मोशन देना है, तो यू कैन यूज़ लाइक दैट। ओके, इसके बाद बात करते हैं यू कैन, ये सब बाद में इस बुक में थोड़ा बहुत उतना अच्छा नहीं है। इन द लास्ट देखो, एवरेज डे रेट कॉस्ट ऑफ द ड्रिलिंग रिग में बी 4 to 6 टाइम दैट 10 hour डे वर्क ओवर यूनिट। ओके, सो पूरी की पूरी रिग वहाँ पे ड्रिलिंग की बना के रखी है, तो उसका रेंट आपको वर्क ओवर की रिग से, वर्क ओवर यूनिट दैट मीन्स ये सीटीयू की बात कर रहा है, जो कोयल ट्यूबिंग यूनिट होता है ट्रक में माउंटेड, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट दे रहा है, नॉट 1, 2 और 3 टाइम, 4 to 6 टाइम, दैट मीन्स वेरी हाई कॉस्ट। ओके, फिर ये ट्रेनिंग तो सबको देनी पड़ेगी, उसके बिना तो काम होने वाला नहीं है। जो सारे क्रू है उसको क्या देनी है, अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी है। शट आउट एट 9, ठीक है, ऑपरेशन प्रोडक्शन रिग इन डेली लाइट अवर्स ओनली, ये बोल रहा है कि आप नाइट में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट यूज़ इन दी नाइट, ठीक है, सेफ्टी पर्पज ऑफ व्यू है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और उसमें बहुत सारे अपवाद है, ये 3 कंडीशन है। अगर आप ऑफशोर में ले रहे हो तो यू कैन वर्क यूज़ इट एट नाइट, ठीक है, सफिशिएंट। अगर आपका जो नाइट में जो शटडाउन करता है जो, ठीक है, तो आपका सरफेस पे जो वाल है या वो कोई बिगड़ चुका है या फिर वो एबल नहीं है अभी के लिए, जो प्रेशर है वो रेटिंग के बाहर है, ठीक है, आपको वहाँ पे 5000 जितना प्रेशर अप्लाई करना है सरफेस से और आपके पास 4000 जितना प्रेशर अवेलेबल है, ठीक है, जो इक्विपमेंट है वो, तो उस टाइम पे यू कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन एट नाइट, ये बोल रहा है। थर्ड वन इज दी अगर आपने शट डाउन किया और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक्टिवेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, ठीक है, तो एट दैट टाइम, तो ये छोटे मोटे रीजन है, ठीक है, कोई उतना डीप थिंकिंग करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, इस पर डाउट मत जनरेट करना, मुझे मत पूछना कमेंट में इस पर डाउट, ठीक है, यू कैन आस्क मी डाउट इन दी कमेंट, बट ऐसे डाउट मत क्रिएट करना कि भैया आप बताओ ना ऐसा इस टाइम पे भी बंद क्यों नहीं रख सकते, ठीक है, ऐसा डाउट मत क्रिएट करना, ठीक है, कोई चीज़, ठीक है, मैं आई विल नॉट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज जो आपकी प्रोडक्शन रिग है, ठीक है, दैट मीन्स आपने ड्रिलिंग कर दिया, तो उसके बाद वहाँ पे पूरी ड्रिलिंग का रेंट थोड़ी ना दोगे, ड्रिलिंग की रिग का रेंट थोड़ी ना दोगे, ठीक है, उस तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जो इक्विपमेंट चेंज किए होगे और उससे एक प्रोडक्शन रिग आपने बनाई होगी और उसमें अब आपको वर्क ओवर करना पड़ रहा है, ठीक है, क्या करना पड़ रहा है, वर्क ओवर, तो उसके लिए आप रिग बनाना चाहते हो, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, ये अब आपको पता है ऑलरेडी, दैट वाई आई स्किप दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि आपको वर्क ओवर करना है, तो उसी के लिए ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन में क्या करनी है, रिग डालनी है, ठीक है, तो उसके पास कौन कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अब ड्रिलिंग के इक्विपमेंट याद करोगे, ठीक है, वहाँ पे जो जो होता था वो यहाँ पे अवेलेबल होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल डेप्थ और लोड कैपेसिटी, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ इस तरह से बोल रहा है कि जो आप डेरिक ले रहे हैं, ठीक है, उसके पास क्या होनी चाहिए, इन कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपने अब वर्क ओवर करने के लिए कुछ इंतजाम किया है, ठीक है, प्रोडक्शन तो आप ले ही रहे हो, ठीक है, बट वहाँ पे वर्क ओवर करना है साथ में, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ ड्रिलिंग के जैसा ही हो गया वर्क ओवर एक, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे तो आपका वो क्रिसमस ट्री लगा रहेगा वहाँ से, और वहाँ से आप पूरा का पूरा सेफ्टली प्रोडक्शन करते होगे, बट अब क्या करना है, इसके साथ साथ आपको वर्क ओवर भी करना है, तो वहाँ पे वर्क ओवर के टाइम पे आपको रिग लगानी होगी, प्रोडक्शन के टाइम पे कोई ऐसी एक्स्ट्रा रिग नहीं होती, बट वर्क ओवर के लिए आपको आइदर यू कैन यूज सीटीयू कोयल ट्यूबिंग यूनिट ट्रक में ले जाओ या फिर वहाँ पे परमानेंटली रिग बनाओ, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट इज दी लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो वो तो होनी ही चाहिए उसके पास। सेकंड वन इज दी ब्रेकिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स वहाँ पे एक ब्रेक होनी चाहिए, जैसा ड्रो वर्क में होता था, ठीक है, गियर ब्रेक सिस्टम होती थी, सिमिलरली उसमें भी क्या होना चाहिए, इट मस्ट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज दी
अब देखो ये पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जाने दो, ठीक है। ये ऐसा ही बोल रहा है कि कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर होगे। तो आपको ड्रिलिंग की रिग पता है, आप वही सोच लो, उससे आंसर दे दो। मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट क्या है, सेम ही हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली आपको अब ड्रिलिंग जैसा ही करना है कुछ, ठीक है। आपको फिर से पूरी असेंबली लोअर करानी है और वहाँ पे वर्क ओवर करना है, तो सारे यूनिट कैसे हो गए, ड्रिलिंग जैसे ही हो गए। और इसमें जो वैल्यू दी है, ठीक है, अगर इसमें वैल्यू दी है तो वो आपको एज अ रेफरेंस दी होगी ताकि आप क्वान्टिफाई कर सको, ठीक है। तो दैट इज नॉट दी दैट मच इश्यू। उसके बाद जो डेरिक है, ठीक है, आप डेरिक में भी दो टाइप के डेरिक है, मास्ट, ओके। मास्ट जिसे बोलते हैं, मास्ट और डेरिक का डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी सीन। सो टू टाइप के मास्ट वहाँ पे यूज होते हैं। वन इज द कन्वेंशनल पोल टाइप मास्ट, सेकंड वन इज दी कौन सा था, सेल्फ गाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल्फ गाइड स्ट्रक्चर मास्ट, ओके। ये दो तरह के मास्ट है। सो फर्स्ट वन इज दी, जो इसमें अपना पोल रहेगा, ठीक है, ये उतना रिजिड होगा कि इसको एक्स्ट्रा लाइंस नहीं चाहिए होगी, ठीक है। इसका मीनिंग, ये लाइंस देख रहे हो आप, ठीक है। आपका यहाँ पे कहीं पे मास्ट है, चलो मैं अपनी आपको 3D फिगर ड्रॉ करके अच्छी बताता हूँ। ये आपका मास्ट है इस तरह का, ठीक है, ये एक तरह का मास्ट है, ओके। सो यहाँ पे आपको इसकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड रखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इस तरह से हमने गाइडलाइन होगी, गाइडलाइन, ठीक है, गाइडलाइन कहते हैं इसको, ठीक है। आप ऑप्शन में देखोगे वेसल मूव ना हो, ठीक है, अपना वेसल मूव नहीं होता, तो उसके लिए जैसे ही इसको क्या करते हैं, मूरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वैसे ही ये क्या है, गाइडलाइन है। ये आपको रस्सी है, ठीक है, रस्सी है एक तरह की, जो इसको क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, किससे, विंड या छोटे मोटे कुछ जो लोड है वहाँ पे, उससे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट दे हैव जस्ट कैटेगराइज, ठीक है, उतना मत डीप में जाओ, दैट इज द नॉट दैट मच, वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड चीज़ आपको बता दूँ, इसमें रेकिंग बोर्ड डालना है तो डाल सकते हो, हैंग शक्कर रोड या सेट बैक ट्यूबिंग, ठीक है। व्हाट आर दिस टर्मिनोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट। सो ये सारी सिस्टम है, ठीक है। ये जो यहाँ पे रेकिंग बोर्ड या ये बता रहा है, ये आपका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। यू कैन गो इन दी वीडियो लिस्ट, ओके, यू कैन चेक दी प्ले लिस्ट, और वहाँ पे एक रेकिंग बोर्ड का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो रेकिंग बोर्ड का यूज़ कोई उतना नहीं है कि ये पाइप है, ठीक है, आपको अब मान लो आपने लोअर किया, ठीक है, आपने यहाँ से पाइप को लोअर किया, मान लो यहाँ पे आपने फर्स्ट पाइप डाली, उसके बाद अब आपको इसके ऊपर सेकंड डाली, अब आपको जब थर्ड डालनी है, ठीक है, तो अगर आपका जो रेकिंग बोर्ड है, रेकिंग बोर्ड या फिर वो जो असेंबली बोला हैंग शक्कर या सेट बैक ट्यूबिंग है, सो वो क्या करेगा, तो यहाँ से आपको एक पाइप लेना है, ठीक है, यहाँ से आपको एक पाइप लेना है और यहाँ पे ला के रखना है इसको, फिर टंग होता है, ठीक है, हमने ये ड्रिलिंग में देखा हुआ है, उससे इसको रोटेट करके यहाँ पे कनेक्शन बनाना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू नीड मैन पावर टू डू दिस। ऑब्वियसली आपको पाइप पुल कर रहे हैं तो आपका मैन इसको यहाँ पे रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, और किसी भी आपको पता है, आपने देखा है ड्रिलिंग, तो ये रस्सी से बंधी हुई होती है, यहाँ तक लाते हैं पकड़ के, यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद टंग होते हैं, आइदर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड या फिर वो जो भी ऑपरेटेड हो, उससे इसको क्या करते हैं, ये कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे आप ऑटोमेटिक सिस्टम भी डाल सकते हो, ठीक है। यू कैन सी इन दी प्लेलिस्ट कैसे वो पाइप अपने आप उठ जाएगी, खड़ी होगी, वो पाइप अपने आप आ जाएगी अपनी लोकेशन पे, वहाँ पे कनेक्शन भी हो जाएगा और फिर से आपका एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिस्टम, ठीक है। ये जो रेकिंग बोर्ड है, ठीक है, ये रेक बोर्ड है या रेकिंग बोर्ड है, जो भी बोलो, रेक बोर्ड क्या है आगे भी बताया है या नहीं बताया पता नहीं, एक तरह का आप जैसे डिशेज को अरेंज करते हो, वहाँ पे जो डिशेज आप घर में अरेंज करते हो, तो वो एक टाइप का रेक है, ठीक है। सो दैट इज़, वहाँ पे आपको पाइप भी तो रखना है, ठीक है, इधर हॉरिजॉन्टली रख सकते हो, सरफेस पे आप लेट डाउन करके रख सकते हो ऐसे। तो ये जो स्टैंड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप पाइप रखोगे, ठीक है, वो क्या है, रेकिंग बोर्ड है, ठीक है। या फिर इस तरह से आप पाइप को इस तरह से भी अपने मास्ट के, या उसकी कैपेसिटी हाई है, ठीक है, इसमें विंड लोड ज़्यादा लगता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेट डाउन है तो विंड का लोड नहीं लगेगा। हमने कैलकुलेट किया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट, 0.004 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, विंड फोर्स पाउट फीट पर फीट स्क्वायर इज इक्वल टू
0.004 वी स्क्वायर। याद है या भूल गए? ऑब्वियसली याद होना चाहिए। दिस इज द माइल पर आवर। ओके, ये क्या होता था? माइल पर आवर। तो हमने विंड प्रेशर कैलकुलेट किया था। एंड अगेन यू कैन यूज दिस एन डी इंटू एल। ठीक है, एन डी एल इज इक्वल टू क्या होता था? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यू कैन मल्टीप्लाई विद दिस। ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। ओके, तो यहाँ पे दो तरह के मास्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑन दिस। ओके, बट ऐसा कुछ वहाँ पे होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, कन्वेंशनल रिग है तो ऑब्वियसली वहाँ पे अच्छी खासी रिग इन लोगों ने बनाई होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मली जैसे अच्छी खासी रिग होती है वैसा ही रिग हो गया। ठीक है, इसमें फिर हुक होगा, हुक के ऊपर आप लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, ज़्यादा पुली यूज करोगे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ताकि आपको इनपुट कम देना पड़े। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक गियर रिडक्शन बॉक्स होगा जो क्या करेगा? आपका ड्रो वर्क होगा ड्रोवर से। ठीक है, फिर वो पूरी ड्रिलिंग की कहानी आ जाएगी। मास्ट होगा, यहाँ पे क्राउन ब्लॉक होगा, ट्रैवलिंग ब्लॉक जैसा कुछ होगा, और यहाँ पे पुली वाउंड होगी और इससे पाइप लोअर होगी। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी सिस्टम थी, ठीक है, जो नॉन कन्वेंशनल होती थी। सो ये देखो, ये आपने ड्रिलिंग में भी देखा हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली ये ड्रम लिखा है, दैट इज द ड्रो वर्क। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम हियर। ओके, सो आपने ये देखा हुआ है। ठीक है, सो ये था, आप पूरा वहाँ पे रिग बनाओ। ठीक है, आप क्या करो, वहाँ पे पूरा रिग बनाओ। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज इट एज अ वर्क ओवर रिग। ओके, ये वहाँ पे आपने क्या किया? पूरी की पूरी रिग इस्टेब्लिश की, बट इसका कॉस्ट क्या होगा? ऑब्वियसली 6 to 7 टाइम्स हाई होगा। ठीक है, अब आप चाहो तो पढ़ लो, जो सारे कंपोनेंट हमने ड्रिलिंग में देखे थे, ऑल दोज कंपोनेंट यू विल रिक्वायर्ड ईयर। ओके, एक भी कंपोनेंट कम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये यू कैन रीड इफ़ यू वांट, आई एम नॉट फोर्सिंग। मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक बार पढ़ा था तो मुझे पता है, वही सब इसमें लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ड्रो वर्क एक्सप्लेन किया है, टंग एक्सप्लेन किया है, स्विवेल एक्सप्लेन किया है, स्विवेल के फंक्शन एक्सप्लेन किए हैं, क्राउन ब्लॉक और वो पुली लगाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट्स होता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट यू नो ऑलरेडी, दैट्स वाई आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप पढ़ो। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे कन्वेंशनल। ठीक है, ये सब आपको पता है, होस्टिंग, रोटेटिंग, सर्कुलेट तो इसमें नहीं करना है, तो वो सिस्टम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वन। ओके, अब बात करते हैं थोड़े बहुत नॉन कन्वेंशनल की। ठीक है, तो आपने अगर पूरा का पूरा रिग इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, आपने पूरा का पूरा वहाँ पे रिग इस्टेब्लिश किया है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा? कंसंट्रेटिंग ट्यूबिंग वर्क ओवर देखते हैं पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ जो लाइन बताने वाला था। सो इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपको अगर वर्क ओवर करना है, ठीक है, तो वर्क ओवर आप देखोगे, वर्क ओवर में आप अगर कहीं पे भी इंटर्नशिप की हो तो आपको पता चलेगा कि व्हाट दे विल डू, दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दे विल रिमूव दी एक्समस ट्री। ठीक है, वो एक्समस ट्री को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ट्यूबिंग हेड को रिमूव करेंगे और ट्यूबिंग को रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ट्यूबिंग को रिमूव करेंगे। थर्ड वन, वहाँ पे क्या एंटर करवाएंगे? बीओपी स्टैक इन आपका इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, फोर्थ, बीओपी इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे? वो वर्क ओवर का जो पाइप होगा या वर्क ओवर रिग होगी, ठीक है, वर्क ओवर रिग तो वहाँ पे ऑलरेडी होगी। ठीक है, तो उसका जो इक्विपमेंट है वो लोअर डाउन करवाएंगे, जैसे कि स्कैपर या कुछ इंजेक्ट करना है फ्लूइड तो उसके लिए पाइप लगेगा, तो वो पाइप और वो सब करेंगे। फिर वो क्या करेंगे? फिर से बीओपी स्टैक को रिमूव करेंगे। फिर क्या करेंगे? ट्यूबिंग को इंस्टॉल करवाएंगे हेड के साथ। ठीक है, और उसके बाद आपका ऊपर एक्समस ट्री को इंस्टॉल करवाएंगे। ठीक है, तो इतना करने में आपको ट्यूबिंग रिमूव करना है और आप कर रहे हो एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा आती है, रिमूव करना और फिर से इंस्टॉल करना। तो उससे अच्छा ये बोल रहा है कि आपका ये ट्यूबिंग है, तो कंसंट्रेटिक वर्क ओवर का मतलब होता है, कंसंट्रेटिक ट्यूबिंग वर्क ओवर का मतलब होता है व्हाट यू विल डू, दिस पाइप को आप ट्यूबिंग को वैसे ही रहने दो, उसके इनसाइड क्या डालो? छोटी सी पाइप डालो। ठीक है, कंसंट्रेटिक पाइप का मतलब ही यही होता है, छोटी सी पाइप डालो और यू कैन यूज़ दिस कंसंट्रेटिक पाइप एज अ वर्क ओवर। ठीक है, यू कैन यूज़ दैट कंसंट्रेटिक पाइप एज अ वर्क ओवर। ठीक है,
ये वाली कंसंट्रेटिक पाइप है। चलो आपको समझ में आ गया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, आपने फिगर आगे देख ली तो वो है, ठीक है। तो इफ़ यू आर यूजिंग द कन्वेंशनल रिग, जो आपको जैसी ड्रिलिंग की रिग है वैसे ही अगर आपने वहाँ पे रिग बनाई है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा, वो जो ट्यूब है उसको रोटेटिंग करने का पावर होगा। क्या होगा, उसको ऑब्वियसली आपको रोटेट कर पाओगे, ठीक है। आप ये ट्यूब को क्या कर पाओगे, रोटेट कर पाओगे। रोटेट करने के बाद आपको कोई एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको रोटेशन करवाने की ज़रूरत है तो यू कैन डू डैट। बट अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल की, जिसका एक मेन डिसएडवांटेज होता है कि आप उसमें ट्यूब को रोटेट नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। और वर्क ओवर में मोस्टली हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है ट्यूबिंग को रोटेट करवाने की, ठीक है। ट्यूबिंग को रोटेट करवाने की हमें उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी सिस्टम है, सो हमने देखा फर्स्ट वन इज दी कोयल ट्यूबिंग सिस्टम। ओके, कोयल ट्यूबिंग सिस्टम। देन कंसंट्रेटिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वही उसमें लिखा होगा, ठीक है। सो खत्म हो गया ये तो भाई, ठीक है। यहाँ पे ही दिया है, हम आगे बढ़ चुके जहाँ पे वो लिखा था। सो कहाँ पे था, यहाँ पे ही है, ठीक है। सो पेज नंबर 301 पे आ चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, आपको ब्रीफ करके लिखा है जो नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल है, वो सारी चीज़ें आपको लिख के दी है। तो फर्स्ट वन नॉन कन्वेंशनल में, ओके, तो फर्स्ट है कंसंट्रेटिक ट्यूबिंग वर्क ओवर रिग, ठीक है। तो आप इसमें रिग तो इस्टेब्लिश करोगे ही, बट उसमें क्या यूज़ करोगे, कंसंट्रेटिक ट्यूबिंग, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, आपका जो वर्क ओवर के लिए जो पाइप इनसाइड डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास टोटल 2 इंच का ट्यूबिंग था तो ऑब्वियसली 2 इंच का पाइप था तो ऑब्वियसली आपका जो वर्क ओवर का लिए पाइप होगा वो लेस देन 2 इंच होगा, तो आपको उसमें डायामीटर स्मॉल मिलेगा, बट आपका काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। सेकंड वन इज द लॉन्ग स्ट्रोक हाइड्रोलिक स्नबिंग यूनिट, ठीक है। स्नब किया था हमने, आपको पता हो तो स्नबिंग क्या होता है, सर्जिंग एंड स्वेबिंग होता था, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। स्नब दैट मीन्स नथिंग, ओके। एंड टू स्नबिंग आपने किया था वेल को एक्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ए नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। जिसने ये बुक पढ़ी है उसको ये पता होगी, एक दो और बुक है उसमें भी लिख के हुई मिलेगी। सो कंसंट्रेटिक ट्यूबिंग यूनिट तो है ही, प्लस दे हैव अ कैपेसिटी टू रोटेट और पुल दी दैट पाइप ट्यूब, ओके। सो ये क्या है, एक स्टेप आगे है, हाई लॉन्ग स्ट्रोक है, दैट मीन्स यू कैन प्रोवाइड द मोशन टू दैट पर्टिकुलर ट्यूबिंग विच यू विल यूज एज अ वर्क ओवर, और आई कैन से आप उसको रोटेट भी करवा पाओगे, ठीक है। तो इसके और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी सिस्टम अवेलेबल है, आपको कहीं पे बोलना हुआ तो आप बोल सकते हो। थर्ड वन इज द कोयल ट्यूबिंग यूनिट, ओके। सो वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी यही यूज़ होता है, कोई रिग नहीं बनाता अलग से, ना कोई कंसंट्रेटिक ट्यूबिंग यूज़ करता है। जो प्रोसीड्यूर आपको अभी बताया, ठीक है, आप ट्यूबिंग को रिमूव करो, एक्समस स्ट्रिक को रिमूव करो, ट्यूबिंग को रिमूव करो, वर्क को बीओपी को डालो, एक्समस स्ट्रिक को डालो, फिर सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी, बीओपी को डालो, उसके बाद वर्क और रिग को डालो, काम हो जाने के बाद फिर से आप क्या करो, ट्यूबिंग को डालो और फिर एक्समस स्ट्रिक डालो और काम निपटाओ, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इसमें जो होता है वो क्या होता है, एक ट्रक होता है, इस तरह से मान लो ये क्या है, आपका ट्रक है, ठीक है। ये एक तरह का आपका ट्रक है जिसके इनसाइड आपने एक रिग डाली हुई है, जिसमें एक क्या है, एक ड्रो वर्क है, उसके बाद एक रील है, ठीक है। आप देख लो गूगल करके, ट्रक में ऐसी कैसी रिग है, ओएनजीसी की रिग का फोटो होगा, ठीक है। सो यू कैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे क्या होगा, क्राउन ब्लॉक होगा, ठीक है, जिससे आपका ये रोटेट हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक इंजेक्शन हेड होगा, ठीक है, जिसमें से आप इंजेक्ट करोगे इसको। इसके नीचे क्या होगा, बीओपी होगा, ठीक है। ये क्या है, इंजेक्शन हेड है, इसके नीचे ये बीओपी लगा के रखी होगी और इस तरह से रिग होगी, ठीक है, ट्रक में ही आपका काम। तो ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाना बहुत ही ईजी है, यू कैन ईजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। बट आप इसमें पाइप को रोटेट नहीं कर पाओगे, और यू मस्ट हैव टू रिमूव दी योर ट्यूबिंग, ओके, यू हैव टू रिमूव दी ट्यूबिंग बिफोर वर्क ओवर, ठीक है। इसमें आपको वो
डिसएडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट इज द स्मॉल डायामीटर शॉर्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये सिमिलर है, जैसे आपका ये कोयल ट्यूबिंग था उससे सिमिलर है, बट आपको इसमें क्या करना है, सरफेस प्रेशर कम देना होगा। ओके, सरफेस प्रेशर आप कम है तो यू कैन यूज़, ठीक है, और आप इसमें पाइप को रोटेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत सिस्टम, और ये इसके अलावा आपको कुछ भी रोटेट नहीं करना और आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना, बस कुछ इंजेक्ट करना है, ठीक है, कुछ जस्ट इंजेक्ट करना है। तो यू कैन यूज़ द इलेक्ट्रिक केबल और वायर लाइन सिस्टम टू जस्ट डू दैट ऑपरेशन। ओके, तो इसमें आपको ट्यूबिंग रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है, बहुत ही कम होगी। जो आपका पैराफिन है उससे उसको स्क्रैप से रिमूव करना है, तो एट दैट टाइम के लिए आप ऐसी सिस्टम यूज़ करो। तो ये था अपना वर्क ओवर, ठीक है। अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दिस होल सेशन, और आई वुड नॉट लाइक टू एक्सप्लेन यू टू गो विद दिस होल दिस थिंग्स, बिकॉज मैं आपको बता दूं इसमें से गेट के लिए तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला चैप्टर है, ठीक है। स्केल तो हमने देख लिया जो इम्पोर्टेंट था, दैट इज़ वेल सफिशिएंट फॉर गेट और आई कैन से फॉर एनी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये वाला चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वर्क ओवर। क्योंकि वर्क ओवर इज़ द एक्टिविटी जहाँ पे आपको रिग ले जानी है उसके बारे में जानना था, दैट वी हैव अंडरस्टूड, उसमें कैसे कैसे वर्क ओवर किया जाएगा। एंड इसके बाद वर्क ओवर प्लानिंग है, ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट, ओके, विथ वर्क ओवर प्लानिंग विथ दिस चैप्टर यू कैन जस्ट रीड इट एज अ योर रिविजन, ओके, बिकॉज सब कुछ हमने देखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम वेल एनालिसिस, फर्स्ट चैप्टर इज द प्रॉब्लम वेल एनालिसिस, वी हैव वेरी वेल कवर्ड दैट। एलिवेशन ऑफ द फॉर्मेशन डैमेज, तो हमने फॉर्मेशन डैमेज भी देखा हुआ है। ये वाले प्रॉब्लम कॉनिंग प्रॉब्लम है या फिर ड्राइव मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, इंजेक्ट कर रहे हैं तो कौन से टाइप से इंजेक्ट करें वो आपको जानना है। फिर ये कॉनिंग वाला यहाँ पे भी है, सेंट कंट्रोल और मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हमने देख लिए हैं। उसके बाद कंप्लीशन इंटरवल और वर्क और इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल काम का नहीं है। तो दिस आर यू कैन रीड इफ़ यू वांट, एंड दिस इज़ द बुक, ओके। बहुत अच्छा भी बुक बोलो या ख़राब भी बुक बोलो, आपको क्या इसमें से कैचअप करना है वो एबिलिटी आप में है तो ही ये बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। बट देखो अब तक जो हमने देखा इस बुक से, सो वी हैव कवर्ड in such a way, so we have covered simultaneously calculation from that book which I have suggested to you. Second one, we have covered theory well enough for production, ठीक है। इसके बाद सेशन को बहुत लंबा बनाने से कोई उतना वो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन, दिस इज़ द पार्ट 2, ठीक है। टोटल 4 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट 2 वी हैव कंप्लीटेड, दिस इज़ द सेकंड पार्ट, थर्ड इज़ द आर्टिफिशियल लिफ्ट एंड फोर्थ वन इज़ द पूरा डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट। सो after complete so we have, I would like to the end this session here only. सो वर्क ओवर में जो भी देखा, ठीक है, वो आपको उतना ज़्यादा समझ में आया नहीं आया, बट वो आपको जानने के लिए कि भाई कोई अगर फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा देख रहा है उसे पता ही नहीं है वर्क ओवर क्या है, क्योंकि वो थर्ड ईयर में नॉर्मली प्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, उसमें सब आता है, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो इसीलिए मैंने ये डाल दिया है। स्केल इज़ द इम्पोर्टेंट, और उसमें भी हमने देख लिया CaCO थ्रू NaCl, वो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, कौन से किसको रिमूव करने के लिए कौन सा ऐड करना है कंपोनेंट, दैट यू नो। दिस इज ऑल अबाउट वर्क ओवर प्लानिंग, ओके, इसी को तो प्लानिंग कहते हैं, ओके। सो उसके बाद अगर आप अपनी रिग बनाना चाहो वहाँ पे, ठीक है, तो वो बनाओ, बट कोई बनाता नहीं है, सबके पास अपने CTU होते हैं, कोयल ट्यूबिंग यूनिट, जिससे आप वर्क ओवर करते हो। सो यू कैन गूगल दैट, यू कैन सी कैसा दिखने में लगता है। बाकी सारे कंपोनेंट तो जो ड्रिलिंग में है वही कंपोनेंट है, एक दो नए हो गए जैसे कि रफ नेक बोला तो वो भी शायद ड्रिलिंग में देखा ही था। सो इट डज नॉट हैव एनी इश्यू, ओके। सो दिस इज द वर्क ओवर रिग, ओके, वर्क ओवर रिग, ठीक है। पूरी रिग पढ़ना है तो यू कैन रीड दैट चैप्टर, यू कैन रीड दैट, कुछ नया इनोवेशन है तो वो भी उसमें बताया होगा। आई डोंट थिंक वो उतना इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आई विल स्टार्ट विद द आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम,
we will understand what is artificial lift and how does it work, and we will start with the first lift SRP, after that Sakar Road pump. Okay, and we will complete SRP, then gas lift, then ESP, then जेट पंप और आई कैन से हाइड्रोलिक पंप, दोनों एक ही चीज़ है. ओके, कोई डिफरेंस नहीं है उतना बहुत. एंड फिफ्थ वन इज द PCP. सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द PCP इन द ड्रिल मोटर, बट वी विल सी व्हाट इज PCP again. We will not derive that equation which we have already derived. So this will take 5 days to complete. Okay, per day per video. Okay, and video may be 2 hour or maybe 2.5 hour in many cases. If it will depend on how much I speak faster or how much I speak slow. Okay, so that is, don't worry about that. Okay, you can speed up or you can speed down by using YouTube, so that is not an issue. So we will see. Okay, so next 5 days we will see this, we will complete this, and we will move to the next is the, after this we will complete nodal analysis and we will conclude the upstream part, then we will move to the downstream part. So thank you very much, thank you for listening me. Any queries you can comment, you can ask, I will reply. Okay, so thank you very much. Okay, I hope आपको ये लास्ट सेशन, आज का सेशन ऐसा लगा हो कि सर ने यूँ ही बस फालतू का बना दिया. भाई ऐसा नहीं है, ठीक है. जो जानना है वो यू शुड नो. ओके, जो नहीं जानना है, अगर आपको फिर भी वो जानना है तो मैं नहीं रोक रहा हूँ आपको. यू कैन रीड, बट दैट इज़ द वेस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, ये भी नहीं करोगे, ये वाला वीडियो ही स्किप कर दिया होता तो भी चल जाता. बट आपको कहीं पे पूछ रहा है कि भाई मान लो कि भाई आप वर्क ओवर के बारे में क्या जानते हो, ठीक है. तो आप क्या बोलोगे, आपके लिए कुछ तो बोलना होगा वहाँ पे, ठीक है. 5 मिनट दे रहा है वो और आपको पूछ रहा है कि वर्क ओवर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करो. आपने कहीं पे वर्क ओवर देखा है तो आप बताओ कि सर मैंने ऐसे तो रियल लाइफ में नहीं देखा है, बट मुझे पता है वर्क ओवर के बारे में. और इफ़ यू आर स्पीकिंग लाइक यहाँ पे CTU होता है, या फिर खुद की पूरी रिग इस्टेब्लिश करो, जो भी कॉस्ट इफेक्टिव है वो डालो. फिर CTU होता है तो उसमें वो पूछ सकता है कि क्या क्या होता है उसमें कंपोनेंट, या छोटा मोटा पूछ सकता है, ठीक है, कि आप उसमें ट्यूबिंग रिमूव करते हो. मेरे सर थे, ठीक है, जो भी मेरे सर थे उनको एक क्वेश्चन बोला गया था कि वर्क ओवर के टाइम पे क्या आप ट्यूबिंग को बाहर निकालते हो. ओके, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में उनको पूछा. आई डोंट नो, उन्होंने शायद ऐसा आंसर दिया था कि पक्का नहीं पता है. तो उन्होंने बोल दिया था कि उनको पक्का नहीं पता है क्योंकि उन्होंने वर्क ओवर में उतना काम नहीं किया है, ठीक है. सो बट इफ़ यू नो, यू हैव अ कॉन्फिडेंस. ओके, इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा. तो यू कैन आंसर. Mostly we use the CTU as a work over rig, then we have to remove the tubing. But there are again non-conventional rig or non-conventional techniques available, such as the coil tubing, concentric tubing unit, or in that we don't have to remove the tubing. Okay, or you can use this capper or that with wire line. In that case also we will not remove the ट्यूबिंग, ठीक है. सो फिक्स आंसर नहीं है, बट वो आपको प्रेशराइज करने के लिए ऐसा आंसर पूछ रहा है, ठीक है. सो दैट इज़ ओके, यू कैन आंसर, ठीक है. सो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है. बाकी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है. कोई भी इंटरव्यू हो, मैंने LTTS का दिया था, उसमें भी जो सर थे उन्होंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे थे. फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन मी द पेट्रोलियम सिस्टम. ओके, उन्होंने पूछ लिया पेट्रोलियम सिस्टम को एक्सप्लेन करो, ठीक है. सो वेरी बेसिक, यू कैन स्टार्ट विद द सोर्स रोक, ठीक है. उनको बताया, सब कुछ बताया. फिर उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे कि भाई एंटीक्लाइन अच्छा है या सिनक्लाइन, तो ऑब्वियसली एंटीक्लाइन, उसका रीजन पूछा. फिर बोयेंसी क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है. सो कोई भी आपको इंटरव्यू ले रहा है वो उतना क्या नहीं होता, कड़क नहीं होता. बस आपको वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है. आप वहाँ पे नहीं आता है तो मना कर दो, बाद में लेना ना लेना उसकी मर्जी, ठीक है. आप रैंक ला के दिखा दो एक बार, ठीक है. आप एक बार आप टारगेट करो इसका, ठीक है, आप टारगेट करो इसका, फिर कोई भी रोक के दिखाए तो बोल देना, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं दोस्तों विद द नेक्स्ट वीडियो. आई विल स्टार्ट विद द आर्टिफिशियल लिफ्ट. मिलते हैं.